اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 17 اور 18 سے ہو رہا ہے۔ ان کی ہم نے تلاوت کی تھی، لیکن اس کا ترجمہ اور توضیح ہم نہیں کر سکے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 17 کے اندر ہے کہ فرشتے اس دن آسمانوں کی سائڈوں پر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 8 افراد 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائے ہوں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کا صحیح مفہوم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہے، اور اس کے بارے میں کچھ علماء نے صحابہ کرام میں سے بھی اور بعد میں بھی ان کی کچھ توجیحات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی جو آیات ہیں وہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ آیات کا صحیح مفہوم جو ہے انسان نہیں سمجھ سکتے، اور ان کے بارے میں جب اہل علم وہاں سے گزرتے ہیں ان آیات کے پاس سے تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ انہ الحق من ربنا، یہ بات ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی تعویلات کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جہاں تک کہ سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے کہ جو اہل غیظ زیغ ہیں، جن کی دلوں کے اندر کھوٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کی تعویلات کے اندر وہ بے سر و پا کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا شاید ان آیات کے صحیح مفہوم سے تعلق بھی نہ ہو۔ تو ایک مسلمان جس کا خدا کے اوپر ایمان ہے، رسول کے اوپر ایمان ہے اور وہ کلام اللہ کو مانتا ہے، تو وہ جب ان آیات سے گزریں گے تو وہ وہاں سے گزر جائیں گے، اس کے اندر زیادہ توقف نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہو سکتا ہے، اللہ نعوذ باللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے اور پھر اس کو جو ہے فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ یہ باتیں تو اسلام نے اللہ کے بارے میں جو بتائی ہیں ان کے ساتھ تو میچ نہیں کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ مرکوز نہیں ہے، اور یہ کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کا بھی عرش ہے جس کے اوپر وہ تشریف رکھتے ہیں اور پھر اس عرش کو لوگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش کا محتاج ہے، اور 8 فرشتے ہیں تو 8 سے زیادہ 9 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مختلف قسم کی تعویلات ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں میں چند ایک احادیث آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، اس کی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بات کروں، اللہ کے فرشتے کے بارے میں، کہ جو ان فرشتوں میں شامل ہوگا کہ جو عرش الہی کو اٹھائیں گے۔
अम्मा बैन शहमत उज़निही इला आतिक़िही, उसकी जो कान की जो लौ है फरिश्ते की, उसकी और फरिश्ते की जो गर्दन है उसके दरमियान मसीरत सबअत आमिन, सबअत सबअमियत आमिन, उसकी कान की लौ और उस फरिश्ते की गर्दन के दरमियान 700 सालों का फासला है। अब हम इसकी तावील में नहीं जा सकते। फरिश्ते की कान की लौ और उसकी गर्दन के दरमियान जो फासला है उसकी जसामत इतनी है। 700 साल से मुराद क्या है? नूरी साल मुराद है, हमारी जो एस्टिमेशन है उसके मुराद है। तो हम इसकी तह तक नहीं पहुंच सकते हैं, और जितनी इसकी तह में जाएंगे और ऐसी बातें खुलेंगी कि नऊजुबिल्लाह जो हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा दें कि जहां से लौटना मुश्किल हो ईमान की हालत में। तो इनमें ज्यादा बहस जो है नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसकी असली हालत में देखा। ये नुज़ुल वही के आगाज में था कि आप कुर्सी पे आसमान में फिजा में बैठे थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। तो अब ये तो ये फरिश्ते का ये हाल है कि जो अल्लाह के अर्श को उठाएंगे उस दिन क़यामत वाले दिन, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जिसके 600 पर हैं और जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड है और तमाम मलाइका के वो सरदार हैं, तो अब उनकी जो जिसामत होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक भी वो एक डिफरेंट मखलूक है, हम एक डिफरेंट मखलूक हैं। उनके मतलब है कि तमाम शब व रोज जो है वो रूहानियत के अंदर, नूरानियत के अंदर गुजरते हैं, और हम जो है ये मादी है, खाकी लोग हैं। तो बहरकैफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई हैं, और कुछ लोग इनके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा डेप्थ पे गए हैं, और उसका कोई नतीजा नहीं है कि इंसान अपनी इल्मी अजमत को बखारने के लिए और इस तरह की जो है ना वो बातों में जाए। तो इसको इसी तरह जिसका तर्जुमा है ना इसी तरह ले लें। बाकी इसकी सही समझ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को है। अर्श से मुराद ये भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की अथॉरिटी कायम हो, और उसमें अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, टू होम बिलोंग्स द किंगडम टुडे। और अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाएगा कि आज मुझे ये सारी किंगडम जो है वो है, कि उस दिन कोई बोल नहीं सकेगा। उस दिन अंबिया किराम जो है वो भी खामोश होंगे, अल्लाह तबारक व तआला का इतना जलाल होगा। और उस दिन मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला के जो दीदार होगा उनको वो हासिल होगा वाकई सही मानों में, और उस दिन वो अल्लाह तबारक व तआला को वो देख सकेंगे। और कई ऐसे लोग होंगे कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को छुपाएगा, और वो उनसे जो है वो छुपे होंगे। यौम इज़िन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, उस दिन तुम्हें पेश किया जाएगा अल्लाह के सामने, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, तुम्हारी कोई भी चीज जो छुपी होगी वो पोशीदा नहीं रह सकेगी। तमाम की तमाम की बातें जो हैं वो अल्लाह के सामने होंगी, इंसान को दिखाई जाएंगी वो तमाम चीजें। और उस दिन इंसान हैरान होगा, और इंसान आर्गुमेंट करेगा कि ये चीज तो जो है ना ऐसे नहीं थी, ऐसी थी। तो एक हदीस के अंदर रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह अन्हु, कि अल्लाह के सामने जो है बंदों की जो पेशी होगी, अर्ज होगी, वो तीन किस्म की होगी। एक अर्ज तो वो होगी कि जिसके अंदर जो है आ, इंसान के जो अमाल जब उसको पेश किए जाएंगे, तो एक के अंदर तो वो होगा कि इंसान क्या करेगा, जिदाल आर्गुमेंट्स होगी, बहस होगी। व महावीरुन, और दूसरी वो होगी कि जिसके अंदर इंसान उज़्र पेश करेगा, एक्सक्यूजेस पेश करेगा। ये तमाम की तमाम बातें जो है ये होगी। अम्मा सालिसतु फइंद ज़ालिका ततीरु सुहुफ़ फिल अयदी व आखिदुन बियमीनिही व आखिदुन बिशिमालिही।
اور जहां तक कि तीसरी अर्ज का ताल्लुक होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इंसानों के हाथों के अंदर उनके आमाल नामे पकड़े जाएंगे। किसी को तो दाएं हाथ में पकड़ा जाएगा, किसी को बाएं हाथ में दिया जाएगा। और ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्दुल्ला बिन हंसला गसीलुल मलाइका रजी अल्लाह अन्हु के जो साहबजादे हैं, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, पेश होगा, और उसकी जो बुराइयां हैं वो उसके सहीफे की पुष्ट पर जो है वो होंगी। और अल्लाह तबारक व ताला उनसे कलाम फरमाएगा कि क्या तुमने ये काम किए थे जो तुम्हारे सहीफे के अंदर नजर आ रहे हैं। देखिए, इंसाफ और अदल, अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ और अदल की जो आखिरी हद हो सकती है इंसान की समझ में भी, उससे भी बियॉन्ड दैट वन, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के साथ इंसाफ फरमाएगा। जो इंसाफ अल्लाह तबारक व ताला बंदों के साथ करता है, वो इंसाफ कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ न कर सकता है, और न इंसान के अंदर उसकी हिम्मत होती है। तो अल्लाह तबारक व ताला बंदे से पूछेगा कि भाई ये तुम्हारे जो गुनाह नजर आ रहे हैं, यही तुम्हारे गुनाह हैं। फयकूल लहू, के अल्लाह तबारक व ताला के सामने बंदा इकरार करेगा, और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि ये जो तुम्हारे गुनाह थे, इनको मैंने दुनिया में खुफिया रखा। ये जो तुम्हारे गुनाह थे, इनको मैंने दुनिया में खुफिया रखा, और मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी है। जिस तरह मैंने दुनिया में छुपाया था, आज मखलूक के सामने भी तो मैंने तुम्हारे उन गुनाहों को जो है वो छुपा दिया। तो उस वक्त जो अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे, उनको जब ये सहीफा, उनका अमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, हा उमुक़रऊ किताबिया, हा उमुक़रऊ किताबिया। वो बजाय खुद किताब को पढ़ने के, हाउ इस जमा का सीगा है कि लो, और इसका मतलब ये होता है कि वहां पर लोग अपने ग्रुप के अंदर होंगे, अपने साथ उनके या तो दोस्त होंगे जो दुनिया में मुत्तकीन थे, और उनके साथ वो उससे बैठने वाले होंगे जन्नत में भी, या उनकी फैमिली के लोग होंगे, क्योंकि ये जमा का सीगा है। वो लोगों से कहेगा कि हाँ मुकरऊ किताबिया, ये मेरी किताब पढ़ लो, तुम मेरी किताब पढ़ के मुझे सुनाओ। तो वो क्यों कहेगा ये फर्ज से कि उसको तो दाएं हाथ में जब किताब मिल गई है, तो उसको नवीद मिल गई है कि ही हैज बीन सक्सेस, और वो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन वो दूसरों को दिखाएगा, एक फर्ज की बात है, खुशी की बात है, और वो उनसे कहेगा कि तुम मेरी किताब कुछ है वो पढ़ो। तो इसी तरीके से जो दूसरे लोग होंगे जिनको किताब बाएं हाथ में दी जाएगी, वो कहेंगे कि हमारी तो है तबाही और बर्बादी है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबी, बेशक मैं गुमान करता था कि मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। देखें, यहाँ पर जो लफ्ज है जनन तो इस्तेमाल किया है, और जन जो है वो इस्तेमाल होता है गुमान के लिए, और गुमान के अंदर अच्छा गुमान भी होता है, बुरा गुमान भी होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की और इस कलाम पाक की हिकमत है कि यहाँ लफ्ज से जनन तो इस्तेमाल हुआ है, अलिम तो नहीं हुआ। अलिम तो के माने है मुझे इल्म था, और जनन तो के माने में है मुझे गुमान था। तो फर्क, मीनिंग तो यही है कि मुझे इल्म था, लेकिन लफ्ज से जन गुमान इस्तेमाल किया गया है कि आखिर वक्त तक कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि उसका अंजाम जो है वो कौन सा हो। और इसके बारे में उलमाए किराम ने मुख्तलिफ जो है वो तशरीहात लिखी हैं कि कुरान पाक का लफ्ज जनन तो जो है ये कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर फरमाते हैं कि हजरत इमाम दहाक फरमाते हैं कि इंसान कुरान के अंदर जहां कहीं भी लफ्ज जन ईमान वालों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक, कि जहां पर इस्तेमाल हुआ है कि ईमान वाले गुमान रखते हैं कि यह क्यामत वाक़ होगी,
का इस्तेमाल करते हैं, ज़न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मोमिन की निस्बत से इस्तेमाल होगा, उसका तर्जुमा होगा कि उनके यकीन है। और अगर वही लफ्ज काफिर के माने में इस्तेमाल होगा, काफिर की निस्बत से होगा, तो वो होगा शक के माने में, क्योंकि काफिर जो है उनको यकीन नहीं था, उनका ईमान नहीं था कि मौत के बाद जो है वो जिंदा होना है और हिसाब किताब है और जन्नत और दोजख है। इसी तरीके से इमाम हसन फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो अल्लाह के साथ हुस्न जन रखता है, और जब वो हुस्न जन रखता है तो उसकी बरकत से, उसकी तुफैल, उसके नतीजे में वो आखिरत के लिए अच्छा अमल करता है, तो उसको उसका अजर जैसे उसकी नीयत थी उस पर उसको मिलेगा। जहां तक के वो लोग हैं जो ईमान की नेमत से महरूम है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, और बुरे गुमान की वजह से उनके अमाल जो है वो गलत साबित होते हैं। तो इसलिए ये जो मुसलमान जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दाएं हाथ के अंदर सहीफा दिया जाएगा, वो खुशी का मुजाहरा करेगा और इस खुशी को वो शेयर करेगा अपने फैमिली वालों के साथ और दोस्तों के साथ। फहुव फी ईशतिन रादिया, तो वो अपने सहीफी की बरकत से वो एक कंफर्टेबल प्लेजेंट लाइफ के अंदर जो है ना वो दाखिल होगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। फी जन्नतिन आलिया, ऐसे बाग के अंदर होगा कि जो बहुत ही बुलंद हो। और ये भी बाग की खूबसूरती है कि जहां वहां पर मुख्तलिफ फल होंगे, फूल होंगे, वो बुलंद बाला होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला वहां पर क्या करम फरमाएगा कि कुतूफुहा दानिया। कुतूफ कहते हैं जब आप फलों को, फूलों को आप जब पिकअप करते हैं, तो उसको उठाने को आप कहते हैं कुतूफ, पिकअप करने को। दानियतन के माने हैं करीब, दुनिया को भी इसलिए कहते हैं कि दुनिया जो है वो करीब है और आखिरत जो है वो दूर है। तो दानियतन के माने हैं कि उसके फल जो है वो करीब होंगे। क्या मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को ये सहूलत अता फरमाएगा कि अगर वो चाहे अपने बेड से, अपने पलंग से खड़े होकर फूलों को लेना चाहे तो ये भी ले सकता है, जितनी भी ऊंची होंगे अब वो उसकी दस्तरस के अंदर होंगे। और अगर वो चाहे कि बेड के अंदर सो रहा है, बैठा हुआ है, और फल उसके हाथों में और गोद में आके गिर जाए, तो ये भी हो जाएगा कि जैसे लहुम मा यशाऊन फीहा, जिस तरह की वो ख्वाहिश करेंगे उनको लब कुशाई की भी जरूरत नहीं होगी और किसी को कहने की भी नहीं होगी। हाँ, वहां खुदाम भी होंगे, लेकिन उनको फल जो है वो उसकी गोद में आ जाएंगे। दानिया का मतलब यह है कि वो उसके करीब होंगे। और फिर उनको कहा जाएगा, ये ऐलान किया जाएगा, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खाली। ये ऐलान किया जाएगा, खाओ और पियो। हनी अन के माने होते हैं कि जब कोई चीज आपके हलक में जाती है जुबान के मुंह के जरिए, तो बगैर उसके अंदर आपको कोई मेहनत न करनी पड़े, आपको उस निगलने में कोई तकलीफ न हो, कोई तकल्लुफ न हो, और आपको किसी किस्म की टेंशन या परेशानी न हो। वो खाना आपके गले के अंदर जो है ना आराम से आप उसको स्वेलो करेंगे, हनी अन, कंफर्टेबली। जी, मिम्मा असलफ तुम फिल अय्याम, आप लोग सुनते होंगे लफ्ज सलफ सालिहीन। सलफ सालिहीन का मतलब यह है कि वो बुजुर्गान दीन जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। तो ये उसी का रूट है, असलफ तुम वट एवर यू हैव प्रेजेंटेड इन द पास्ट। के मतलब क्या है कि दुनिया में रहते हुए आपने जो नेक काम किए, और वो नेक काम आपके दुनिया से जाने से पहले ही अल्लाह के पास पहुंच चुके थे, उनकी बरकत से। खालिया के माने हैं पास्ट। ये भी खालिया के माने खाली के माने में यहाँ नहीं है, खाला के माने यहाँ पर है कि जो चीज पहले हो चुकी हो उसके बारे में, कि जो पहले जो दिन अयाम गुजर चुके हैं माजी के, उनके दौरान में आपने जो नेक अमाल किए थे उनकी बरकत से आप
अभी जो है आराम से आप जो है वो खाएं पिए। ये ऐलान जो है वहां पर कर दिया जाएगा। ये ऐलान होगा किसकी तरफ से? उन खुशकिस्मत लोगों की तरफ से कि जिनके हाथ में, दाएं हाथ के अंदर उनका आमाल नामा दिया जाएगा। इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमा रहे हैं उन लोगों का कि जिनके बाएं हाथ के अंदर आमाल नामा दिया जाएगा। कुरान पाक में एक जगह पीठ के पीछे भी लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस इंसान को बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, वो उसको छुपाएगा, अपनी पीठ के पीछे जाहिर नहीं करेगा। इंसान अपनी बुरी बातों को छुपाना चाहता है, उनको लोगों से शेयर नहीं करना चाहता है, अनलेस के आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जिनके पर आपको एतमाद है और आप समझते हैं कि आप उनसे बात शेयर करेंगे तो वो आपको उसके अंदर आपको जो है वो रहनुमाई देंगे, तसल्ली देंगे। आमतौर से इंसान उन चीजों को जो है ना छुपाता है। तो फरमाया, वअम्मा मन ऊतिय किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबी। जिस इंसान बदनसीब को किताब सहीफा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, फयकूलु या लैतनी, काश मुझे मेरा आमाल नामा दिया ही ना जाता। अमाल नामा जो मुझे दिया गया है, काश कि ये मुझे दिया ना जाता, क्योंकि इसके अंदर तो मेरा बुरा अंजाम है। वलम अद्रि मा हिसाबिया, और काश कि मैं अपना हिसाब किताब न जानता, मैं इस हाल में होता। या लैतहा कानतिल कादिया, काश कि जो मौत मुझे आई थी, कादिया, वो मेरा काम तमाम कर देती। किस तरह कि उसके बाद दोबारा लाइफ न होती, दोबारा रिजरेक्शन न होती, और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मौत के बाद तमाम किस्सा खत्म खत्म हो चुका होता, तो मुझे ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। इंसान उस वक्त हसरत का इजहार करेगा, और उसके इस हजरत के इजहार से उसको कुछ फायदा नहीं होगा, और कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, मुझे जो मेरा माल था, मेरी दौलत थी, कमाई थी, उसने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। वो तमाम माल दौलत मैं छोड़ के आ गया, और मुझे उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। और फिर कहेगा हालाका अन्नी सुल्तानिया। अब देखिए, सुल्तान का तर्जुमा हम लोग बादशाह कहते हैं, सुल्तान का तर्जुमा आप दलील भी कहते हैं, सुल्तान का तर्जुमा आप अथॉरिटी भी करते हैं, और सुल्तान का तर्जुमा आप शान शौकत भी करते हैं। यानी शान शौकत इस मान में कि एक इंसान के और कसीर औलाद हो, उसकी फैमिली के लोग ज्यादा हो, खानदान के लोग ज्यादा हो, उसके पास मैन पावर हो, नौकर चाकर हो, और उसकी एक छाट और उसका एक रोब जो है वो बना हुआ। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि लोगों की एक छाट बनी होती है, लोग उनके पास जाते हैं अपनी जरूरतों के लिए, और उनकी रिस्पेक्ट होती है, और लोग उनकी रिस्पेक्ट को देखकर लोग अपने दिल में ख्वाहिश करते हैं कि काश हमारी भी ऐसी पोजीशन होती। जिस तरह के कारून को उसकी कौम ने देखा था, उसकी हयात को देख के तो उन्होंने कहा था काश हमारे पास भी वो चीज हो। तो ये हलक अन्नी सुल्तानिया के माने हैं कि मेरी जो अथॉरिटी थी, मेरा जो रोब था, डिस्ट्रॉयड, फिनिश, वो मेरे काम नहीं आ रहा है। अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाएंगे, फरिश्ते क्या फरमाएंगे? उदू हो, अरेस्ट हिम, इसको पकड़ो, फगुल्लू हो, और इसको जंजीरों के अंदर बांध दो, इसको जंजीरों के अंदर बांध दो। फुम्मल जहीम सल्लू हो, इसको जंजीरों में जकड़ कर, इसकी गर्दन को, इसके हाथों को, इसके पांव को जंजीरों में जकड़ कर फिर जहन्नम के अंदर इसको फेंक दो। सल्लू, सल्लू के माने आप तर्जुमा करते हैं कि नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो। सल्लू का माने यहां पर यह है कि आप आग जलाने के लिए उसके अंदर जब फूंक मारते हैं,
اور ایندھن تیار ہوتا ہے، آپ اس کو ماچس کی وہ تیلی لگاتے ہیں، وہ فوراً جو ہے آگ بھڑکتی ہے۔ تو سلو کا مطلب ہے جہنم میں اس کو ڈال کر آگ جو ہے اس کو پھونک مارو اور اس کو تیز کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام جو ہے بتا رہے ہیں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور یہ بڑی ہولناک بات ہے ویسے۔ پھر آپ کیا کریں؟ فی سلسلہ، سلسلہ کے معنی میں ہے چین، جو زنجیروں کا جو چین ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں۔ پہلے آپ نے زنجیروں میں اس کو جکڑا ہے، پھر آپ نے اس کو آگ، تپشتی آگ میں ڈالا ہے اور اس کے اوپر آگ کو سلگایا ہے، اور پھر اس کو ایک ایسے زنجیروں کے چین میں جکڑ دو، زرعھا جس کی پیمائش کتنی ہے؟ 70 ذراعا، 70 کے معنی ہے 70، 70 بالے، 70 جو مطلب ہے کہ انسان کے جو ہاتھ ہے نا، اس کو ذراع کہتے ہیں، کہ 70 جو ہاتھ ہیں، 70 جو گز ہیں، اس کے برابر اس کی مطلب ہے کہ پیمائش ہوگی۔ اتنی لمبی زنجیر کے اندر اس مجرم کو جکڑ کے اس کو بند کر دو۔ فسلکو مطلب یہ کہ زنجیر کو جب آپ تالے لگاتے ہیں، اس کو کڑیاں بنا اس کی بند کرتے ہیں، تو انسان کو مجال نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تو شدید ترین ہے کہ جس کے اندر 70 جو مطلب ہے کہ اس کی لڑیاں ہیں، کڑیاں ہیں، اس کے اندر اس کو انسان کو بند کر دیا ہے، انسان وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم ہے اس کو یہ نہیں مانتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو انکریج نہیں کرتا تھا، اس کی حیثیت تو بہت بڑی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اور آج اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے، اس کو سپورٹ کر سکے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہیں اس کے پاس کوئی کھانا ہوگا سوائے غسلین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھیں، اس کی شان بے نیازی کو دیکھیں۔ غسلین کو آپ کہیں گے دھون، جو اس وقت جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کے بدن سے، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی، وہ پیپ ہی ان کو کھلائی جائے گی، اور وہ پیپ اتنی سخت ہوگی کہ فرمایا کہ اگر وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی رپورٹر ہیں کہ اگر جو ہے نا ایک ڈول غسلین کا دنیا کے اندر پھیلا دیا جائے تو اس کی بدبو اتنی پھیل جائے گی کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی، اور یہ انسان کا کھانا پینا ہوگا گرم پانی جس سے انسان کی آنتیں جل جائیں گی، اور اس کو جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا ان کے زخموں کا، وہ اس کو جو ہے کھلایا اور پلایا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا نہیں کھائیں گے مگر خاطئون کا مطلب ہے غلطی کرنے والے، گناہگار اور کرمنلز اور مجرم۔ اب یہ قرآن پاک کی یہ آیات کچھ لوگ پڑھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کا جو تصور ہے رحمان اور رحیم کا، کریم ہے، ودود ہے، مہربان ہے، اور اس کی تمام جو صفات جمال ہیں ان کا، لطیف ہے، کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت کہ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بیک جنبش معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ
इतनी कड़ी सजा जो है क्यों दी जा रही है वैसे? और आपको ईसाइयों के यहाँ एक व्यू पॉइंट मिलेगा कि इंसान अल्लाह ताला के नऊज़ बिल्लाह रूहानी तौर पर बच्चे हैं और इन्होंने गुनाह की हैं, तो इनके गुनाहों का बोझ ईसा अलैहिस्सलाम ने उठा लिया है सूली पर चढ़कर, तो वो सीधे जन्नत के अंदर जाएँगे कि अल्लाह ताला किसी इंसान को अपने बच्चों को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये मुसलमानों के यहाँ इतना सख्त अज़ाब का तसव्वुर क्यों है वैसे? तो ये लोग भूल जाते हैं, इसकी कई वजूहात आपके जवाबात दे सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि ये लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बिला तमीज़ साँस लेने के लिए ज़िंदगी अता फ़रमाई, रूह अता फ़रमाई, उसकी नरिशमेंट के लिए तमाम चीज़ें मुसख्खर फ़रमाई, रिज़्क अता फ़रमाया और गुनाहों पर गुनाह इंसान करता गया, अल्लाह की अथॉरिटी को चैलेंज करता गया, अल्लाह ताला ने उसको बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर सब्र किया और इस इंसान को कभी मुसीबत के वक़्त ये ख़्याल नहीं आया कि अल्लाह भी हो सकता है। तो वो तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करता गया और अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए ये पैगामात दिए थे, ये वादे किए थे कि ऐसा होगा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला को ब्लेम करने के अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह ज़ालिम है, उसके यहाँ इंसाफ़ नहीं है। इंसान अपने रवैये पर भी गौर करे कि इंसान का रवैया क्या था। और फिर ये है कि भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग नेक काम करने वाले हैं, उनके साथ वादा किया था कि उनको ये जो नेक काम करेंगे, नेक काम करने में उनको कई चीज़ों से महरूम होना पड़ेगा और नेक काम करने में उनको कई तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, जिस्मानी, ज़हनी और ये तमाम की चीज़ें। और उनके साथ जो वादा किया था कि भई आपको मैं यहाँ रखूँगा और जो लोग दूसरे को उनको मैं यहाँ रखूँगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के ये वादे कहाँ जाएँ? हाँ, आखिरत में हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह कुरान पाक में आई थिंक ग़ालिबन सूरह हूद के अंदर है कि जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा अल्लाह ताला उनको वहाँ पर रखेगा इल्ला मा शाअ रब्बुक, जहाँ तक अल्लाह ताला चाहेगा। तो अल्लाह ताला हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद की सज़ा को माफ़ कर दे और उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इनाम से नवाज़े। लेकिन इंसान अल्लाह तबारक व तआला का जो इंसाफ़ है, वो भरकैफ़ जो है वो कायम होगा। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब जो स्टाइल है वो खिताब अब तब्दील हो रहा है। जिस तरह कुरान का स्टाइल है कि कुरान की आयत आप पढ़ रहे होते हैं, एक मौज़ू के बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा मौज़ू जो है वो शुरू हो जाता है। ये कुरान का अपना एक यूनिक स्टाइल है। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कहलाया जा रहा है। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरूना वमा ला तुबसिरून, यानी मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की कि जिनको तुम देखते हो और उन चीज़ों को जिनको तुम नहीं देखते हो। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन, बेशक ये जो कुरान है, ये कौल है एक ऐसे रसूल का कि जो करीम है, जो मुअज़्ज़ज़ है, जो मोहतरम है, उसका कौल है। अब यहाँ सवाल पैदा होगा कि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो इसकी निस्बत रसूल की तरफ कैसे हो गई? और सूरह तकवीर में इज़ा शम्स कुविरत के अंदर जो है, वहाँ पर जो रसूल की तरफ निस्बत की गई है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ मुराद है और यहाँ रसूल करीम से मुराद अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये उनका कलाम है। हालाँकि हम लोग इस पे बहुत ज़ोर देते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, आपने इसको अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो इसकी तौजीह ये की जाती है कि कलाम तो अल्लाह तबारक व तआला का है,
کہ जब कलाम सुपुर्द होता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के, तो ये कहा जाता है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वो कलाम अल्लाह के रसूल से उनको डिलीवर करते हैं, तो कहा जाता है कि लक़ौलु रसूलिन करीम। तो ओरिजिनली तो कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम जब उसको पहुंचाते हैं तो उस वक्त उनके पास वो कलाम होता है, अल्लाह का होता है। और जब अल्लाह के रसूल सम अपनी जुबान से उस कलाम को फरमाते हैं जो किसी और इंसान को नहीं डिलीवर होता है, तो वाकई उस वक्त वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता है। लेकिन असल जो कलाम है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। तो इसके साथ जो है ना, कोई ऐसी तशवीफ नहीं होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पर कुरान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जो है वो करार दिया गया, हालांकि असल में तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। वमा हुवा बिकौल शाइरिन कलीलन मा तुमिनून। और ये न तो किसी शायर का कलाम है कि बहुत कम तुम लोग उसको मानते। इन अरबों के यहाँ शायर की बड़ी फजीलत थी, बड़ा मकाम था, लेकिन फिर भी लोग शायरों के बारे में ये समझते थे कि इनकी एक तखयलाती दुनिया है। ये जमीन को आसमान, आसमान को जमीन, जमीन आसमान को आपस में मिला दिया, ऐसी ऐसी चीजें, इस्तिहारे जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि उनके अंदर बहुत ही मतलब है कि अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। तो उनकी बातों को, उनसे लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन उनके ऊपर ईमान कम रखते थे बस, शायर के बारे में। वला बिकौल काहिनिन कलीलन मा तदक्करून। अगरचे वो लोग काहिनों को भी मानते थे, फॉर्चून टेलर्स को भी मानते थे, हाथ को देख के बता दिया क्या है, इसके बावजूद भी उनकी बातों से बहुत कम नसीहत पकड़ते थे कि अगर उसने कहा कि ये काम गलत है, तुम इसके अंदर नुकसान होगा, तो उन बातों को ये लोग नहीं मानते थे। ऐसी बातों को सिर्फ मानते थे जो उनके फायदे की बात बताते। अगर उसके अंदर नुकसान होता था, तो उसकी बातों को छोड़ के दूसरी तरकीबें इस्तेमाल करते थे। तंजील मिर रब्बिल आलमीन। तंजील, ग्रेजुअल रिवेलेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू। ये जो कलाम है, ये आपको शायर का कलाम नजर आता है कि इसके अंदर कहीं आपको रिदम नजर आता है, कहीं जो राइम होते हैं वो मिलते जुलते हैं, तो आप समझते हैं कि भाई ये शायराना कलाम है। और आप इसको समझते हैं कि ये कलाम जो है काइन का हो सकता है कि इसके अंदर मुस्तकबिल की खबरें बताई जा रही है, तो वो भी नहीं है। क्या है? तंजील मिर रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए, जहां कहा गया था ना आयत नंबर 40 में, कौल रसूल करीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो आप ये आयत नंबर 43 के अंदर उसकी वजाहत हो गई। तंजील मिर रब्बिल आलमीन, ये नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से। तो लेकिन ये कलाम असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। असल जो कलाम है वो अल्लाह तबारक व तआला का। और उसके बाद क्या फरमाया? वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील। तक़व्वला, इसका रूट कौल है, क़ाल यक़ूलु, बात कहना। और तक़व्वला के माने होते हैं किसी काम को तफ़अुल के तौर पर, तकल्लुफ के तौर करना, यानी ऐसी चीज कि जिसके अंदर तकल्लुफ हो। फरमाया अगर उन्होंने ये बात फैब्रिकेट की, अल्लाह, अगर कहा गया, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह कोई बात हमारी तरफ मंसूब करते हैं, बाज बातें अपनी तरफ से मंसूब करते हैं, तो क्या होगा? लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उसके दाएं हाथ से हम उसको पकड़ेंगे जी। और ये दाएं हाथ से पकड़ने का मतलब क्या है? कि दाएं हाथ से जब इंसान की गिरफ्त आती है, तो इंसान जिसको आप पकड़ रहे होते हैं, वो इंसान आपके कंट्रोल के अंदर आ जाता है। ये अरबों का जो मुहावरा था और उनकी जो समझ थी, उसके अंदर जो है वो आ जाती है। लाअखज़नाहु बिल लाअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, उसको हम दाएं हाथ, दाईं साइड से पकड़ेंगे। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और खताना के मैंने हम उसको क्या कर देंगे?
توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے۔ الوتین وہ رگ ہے جو دل کی رگ ہے، اس کو ہم پکڑ لیں گے سیدھے ہاتھ سیدھی سائڈ سے، اور پھر ہم اس کی جو دل کی جو رگ ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی ان کو ہمارے اس عمل کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا، تم جتنی بھی طاقت جو ہے وہ رکھتے ہو۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انجام بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایسی باتوں کو منسوخ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افتراضی طور پر ان کیس لو کہا کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا، پھر یہ کہ ان کی جان جو ہے نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انجام کس کا ہوگا؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فیبریکیٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، حقیقت کیا ہے کہ یہ ریمائنڈر ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اس کے اندر واعظ ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے لوگ ہیں، کہ تم لوگ جو ہے نا، یعنی اے عرب کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو تم لوگ جو ہے جھٹلانے والے ہو، تم یا سارے کے سارے نہیں کہا بلکہ تمہارے اندر کچھ لوگ۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس قرآن کے اندر کافروں کے اوپر حسرت، کافروں کے اوپر حسرت کے معنی کیا ہے کہ 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کہ ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، تو یہ حسرت تمہارے اندر جو ہے وہ رہ جائے گی، لیکن اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ اور دوسری بات کیا ہے حسرت کے معنی میں؟ کہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوں، ایسی ایسی باتیں نہ ہوں۔ یہ دیکھو اس زمانے کے اندر یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کے بارے میں قرآن کے اندر باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معبودوں کی مذمت کی گئی تھی۔ آج آپ کو اس سو کال ترقی یافتہ دور کے اندر آوازیں آپ نے سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن میں سے، اسلام میں سے یہ چیزیں آپ نکال دیں۔ تو کیا آپ قرآن کو بنانے والے ہیں؟ آپ قرآن کو ریویل کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چاہیں تو اس کو داخل کر دیں، اس کو نکال دیں؟ یعنی آپ اپنی عبادت کا نظام خود آپ بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کہا ہے کہ میری عبادت اس طرح کرو، آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ کی عبادت تو ایسے نہیں ہوگی نا۔ تو یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق الیقین ہے، یعنی یہ حق الیقین کے بھی مراتب ہیں، یقین کے، اور ایک جو ہے عین الیقین ہے کہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں کس چیز کا، اس کو دیکھتے ہیں، آپ مشاہدے سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن حق الیقین یہ ہوگا کہ جب اہل ایمان کو یقین ہو جائے گا وہ تمام چیزیں جن کا دنیا میں اللہ نے وعدہ فرمایا گا ان کو قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے تو ان کو حق الیقین ہو جائے، اور ان کے پاس کوئی ذرہ اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ حسرت الکافرین، کہ جو کافرین ہیں ان کو وہاں پر حسرت ہوگی کہ کاش ہم مان لیتے، تو ان کو جو ہے نا یہ چیز ان کے لیے حسرت ان کی باقی رہے گی۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، قرآن کی آیات کے اندر ان کا جو کنکلوژن ہوتا ہے، ہم لوگ بعض اوقات اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اتنی لمبی جو ہے یہ صورت ہے، اس کے اندر اتنے موضوعات بیان ہوئی ہیں، کہیں کسی کی مذمت کی گئی ہے، کسی اچھی بلائی مدح کی گئی ہے، آخر میں کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ دنیا کی جو باتیں ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے۔ اور مسلمان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، مسلمان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کریں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ تو یہ آیت نمبر 52 ہے سورہ الحاقہ کی۔ اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی آیات، آج کے درس میں جن آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔